अच्छा जी। जहाँ हमने रोका था, हमने कहा था कि okay जी, जो हमने इसमें एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर सिंथेसिस मैट्रिक्स का कि वंस यू स्टार्ट राइटिंग योर comments about different themes based on your research questions, you collect various ideas on those singular themes and arrange them in a synthesis matrix. So synthesis matrix in fact is something जो मैंने आपसे कहा कि जरा आप एक्सप्लोर भी करें अपने एंड पे जस्ट टू गेट इन्वॉल्व। तो क्या मिला आपको उसके ऊपर? It is something to organize and synthesize information from multiple sources used in SLRs for meta-analysis and comprehensive analysis of existing literature. A table or spreadsheet with columns representing the themes, topics, or research questions being addressed in the study, while the rows represents different sources of information being analyzed, which could be articles, books, or any documents, which you have screened through your screening process as per Prisma approach और सेकंड अप्रोच कौन सी थी? कौन सी? किचन एम अप्रोच, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट the information may include summary of key findings from sources that supports or contradicts your research questions or themes being answered. It compares, contrasts the information from different sources, identify patterns, trends in the data, draw conclusions about the overall state of knowledge in a particular dimension or on a particular topic. Could have something like this. You need to make something like this. Your theme one, key findings on those themes, and the sources which are either supporting them or contradicting them. This could be one way of drawing the synthesis matrix. This I have taken from a published paper. The theme was to improve financial estimation, and there are a number of research papers which are in support along with their models, data sets, and evaluation matrices. So this is one form of synthesis matrix on one theme out of many themes. There could be 4 or 5 themes in an SLR, right? So I hope you are trying to figure it out. Okay, what the literature review is this, and SLR is not a literature review. It's not a common literature review जो हम नाम लेते हैं, ठीक है? It's a little different thing. You need to do a lot of things in which are different than the regular literature review section or chapter, right? So it is a more broader nature. It has got more knowledge to be included. So ideally speaking, this has around 100 plus research papers to be addressed within that. क्योंकि जो आप 1000-1200 पेपर शुरू करते हैं, उसको कम करते करते आप कोई 100-150 पेपर्स पे आ जाते हैं, जिनको आप फिर रेफर करते हैं ड्यूरिंग योर इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, और उसमें से फिर आप फर्दर अपने बातों को डिस्क्राइब करते हैं। तो मैं आपको एक एक रेफरेंस पेपर भी दिखाता हूँ जिसमें थोड़ा सा आपको और आइडिया होगा कि how this approach has been used. And once you go through your own SLR papers, यानी अदर SLRs जो कि आप पब्लिश्ड हैं, उनको आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये क्या चीज़ है। ये नॉर्मल लिटरेचर रिव्यू नहीं है। ये याद रखें, बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। नॉर्मल लिटरेचर रिव्यू इज समथिंग, ये एक और चीज़ है। SLR इज लिटिल more in-depth analysis of certain things. So let's open. I've already opened one of the paper. The title is Software Cost and Effort Estimation. I've selected this paper because this paper is maybe more related to your domains. This we published last year. और इसके अंदर जो है ये एक SLR है, which is, अच्छा सॉरी विजिबल नहीं है। मैं लेट मी शेयर इट। सर में ये भी खुला हुआ है ना, तो इट हैपेंस। ओके, लेट मी शेयर विद एवरीबॉडी। जी कमलेश, आपको विजिबल है भी? Yes, sir. चलिए ठीक हो गया। सो इफ इट इज विजिबल नाउ,
I think it's now visible to everybody. Let me just hide this floating meeting panel to improve. So this is the research paper, which title is Software Cost and Effort Estimation. Now, इसके अंदर जो current approaches and future trends, उस perspective से title could be a little bit attractive for the audience. और अकॉर्डिंगली जब इसके ऊपर आप बात करेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट पे हम दोबारा भी बात करेंगे, बट एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आप फोकस अगर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि मेथड जो फॉलो किया हुआ है किचनम बेस्ड और प्रिज्मा बेस्ड। यहाँ किचनम बेस्ड मॉडल डिस्कस हुआ हुआ, तो आप देखें इसमें अगर आपको कुछ नजर आ रहा होगा कि कुछ सिलेक्टेड आर्टिकल्स की बात हुई हुई है, 52 आर्टिकल्स विच हैव बीन सिलेक्टेड, and then some of the related performance benchmarking has been written, and then those things have been explained for their usability. So अगर मैं इसको आगे लेके चलूँ और आप जहन में रखें एसएलआर की जो हमने बातें अभी की थी कि इसके अंदर एक इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन में क्या होगा, रेशनल होगा, रिसर्च क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे। सो अकॉर्डिंगली अगर इसको आप थोड़ा सा इसकी आप रेजिंग करें तो आपको नजर आएगा कि इसके अंदर पहले बात हुई है एग्जिस्टिंग पेपर्स की, एग्जिस्टिंग एसएलआर्स की, उनके प्रॉज एंड कॉन्स डिस्कस किए हुए, और उसके बाद इसकी बेस के ऊपर थीम को जनरेट किया गया है कि बेस्ड ऑन दिस हमारे पास क्या पर्टिकुलर रिसर्च क्वेश्चंस होने चाहिए फॉर दिस न्यू एसएलआर टू बी इफेक्टिव। ठीक है जी। सो नजर आ रहा है जी, हमजा आपको भी नजर आ रहा है, वहां देख रहे हो? वो क्लियर नहीं है, लाइट थोड़ी कम कर लो। वहां पे आप उस पे स्क्रीन पे देख रहे हो, लाइट भी थोड़ी सी मैं अगर कम कर लूँ तो शायद आप इधर लोगों को, बट अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है दी सेशन ऑन जूम तो उधर शायद विजिबिलिटी बेहतर होगी आपको। खैर इधर भी अगर आप देखते जाएं तो देखें वही बात जो मैंने आपसे की थी कि आपने अपनी गैप एनालिसिस या कहें कि रेशनल डिफाइन करना है। रेशनल इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ द एग्जिस्टिंग एसएलआरस। सो यू आर टॉकिंग ऑफ एसएलआरस इन इंट्रोडक्शन सेक्शन, नॉट ऑफ इंडिविजुअल थिंग्स। एसएलआरस की बात, क्योंकि आप एसएलआर लिखने जा रहे हो तो एसएलआर के ऊपर आपने कमेंट करना है कि एग्जिस्टिंग एसएलआरस इस एरिया में क्या कर रहे हैं, क्या बातें उन्होंने की हुई हैं, और उसके अंदर से अपने रिसर्च क्वेश्चंस आप निकालेंगे। अगर आप रिसर्च क्वेश्चंस देखें तो इसके अंदर अब इस पर्टिकुलर डोमेन में व्हाट आर द मोस्ट कॉमन एमएल नॉन एमएल टेक्निक्स फॉर सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन एंड हाउ डू दे कंपेयर फॉर टू अदर कॉस्ट एस्टिमेशन मेथड्स, फर्स्ट रिसर्च क्वेश्चन है। सेकंड है व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द एक्यूरेसी ऑफ सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन यूजिंग एमएल मेथड्स एंड हाउ कैन दीज फैक्टर्स बी ऑप्टिमाइज्ड टू इंप्रूव कॉस्ट एस्टिमेशन एक्यूरेसी। Third RQ है which organizations and industries have benefited the most from the selected articles which we are discussing in the SLR. What are the most commonly assessed repositories and data sets in these studies? So these are the research questions which are purely from the perspective of an SLR. So इससे पहले भी जो बात हो रही है वो आपकी एसएलआर के मुतालिक ही हुई है। इससे ऊपर जो टेबल बना हुआ है दैट टेबल, अब इसको कितना खूबसूरत आप कर सकते हैं ये आपकी और मेरी, जो बंदा लिख रहा है उसकी क्वालिटीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। कुछ बहुत ही बुद्धे बुद्धे लिखते हैं, बिल्कुल ही बेकार सा नजर आता है, कुछ बहुत अच्छा करके लिखते हैं, बट ये कि अगर आप पंच लाइन्स को जहन में रखें तो आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं अगेन स्टार्ट पे चला जाऊं तो देखें आप इनिशियली जो टेबल है, दिस टेबल इज डिस्कसिंग वेरियस एग्जिस्टिंग अप्रोचेस बेस्ड ऑन वेरियस एसएलआर्स, और उनके प्रॉज एंड कॉन्स की बात हुई हुई है, और लेटर ऑन जो टेक्निकल क्वेरीज इसमें एड्रेस होनी है उनके बारे में बात की गई। एंड देन वी गो ऑन टू द लिटरेचर रिव्यू। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू यहाँ पे बेसिकली वो डिफरेंट स्ट्रीम्स या वो ट्री डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा है जिसके ऊपर बात होगी, राइट। नेक्स्ट वाज द ट्री डायग्राम। इफ आई गो बैक टू द प्रेजेंटेशन एंड आई जस्ट लिंक इट ओवर देयर, तो वहां पे आपको नजर आएगा कि इंट्रोडक्शन के बाद यू डिस्कस द कैटेगरीज and subcategories of the problem domain, your tree diagram. So that tree diagram has been discussed here as well, जो कि इस जगह पे आपको नजर आ रही है कि that is यहाँ पे expert judgment based approaches डिस्कस की गई हैं या इंक्लूड की, algorithmic based approaches के बारे में बात हुई हुई है, कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस बेस्ड अप्रोचेस के बारे में बात की जाएगी, और उनके बेस के ऊपर जो पेपर्स इनिशियलाइज किए गए हैं वो सारे के सारे पेपर, उनके बारे में कुछ डिस्कशन टेबल्स डिस्कशंस इंक्लूड की गई। ठीक है, सो दैट इज इन फैक्ट दोज
that tree diagram which you can bring in here. Introduction is based on SLR. Literature review is based on various branches of the tree. And then comes your methodology, which is in fact, agar isme hum niche aate hain, aasta aasta one by one, you will see that this shows how you are trying to address this SLR. What were the articles shortlisted? आपका सर्चिंग मेथड क्या था? आपके रिसर्च क्वेश्चंस की बेस पे आपने क्या सर्च स्ट्रिंग्स डिफाइन किए थे? आपका इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या था? क्वालिटी असेसमेंट आपने कैसे की? और फिर आपने किस तरह से डाटा को एक्सट्रैक्ट करके रिजल्ट्स को सिंथेसाइज किया है और अपने रिजल्ट्स को प्रेजेंट किया है? तो देखें, इसमें डाटाबेसेस की बात हुई है कि IEEE एक्सप्लोर देखा गया, स्प्रिंजर देखा गया, साइंस डायरेक्ट देखा गया, डिजिटल लाइब्रेरी देखा गया, हिंदा भी देखा गया. It could be anything. Now this set of authors have approached this. Once the paper goes into review, the reviewers may comment कि नहीं यार ये effective नहीं है, आप कुछ और भी चीजों को जाके देखें. That would vary from SLR to SLR and expertise to expertise. But again, point is कि method के अंदर discussions हो रही है कि किस तरह से exploration की जाएगी, किस तरीके से आप आर्टिकल्स को सर्च करेंगे. Now see here the search strings have been defined. You see it is in fact software effort estimation की बेस के ऊपर, software cost estimation की बेस पे, project estimation की बेस पे, and machine learning की बेस के ऊपर, artificial intelligence की बेस के ऊपर, artificial neural network की बेस के ऊपर, various search algorithms, search strings have been defined, and accordingly उसको सर्च करके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आर्टिकल्स को फिगर आउट किया गया है. और यहाँ पे वो आर्टिकल्स का एक शॉर्ट लिस्टिंग नंबर भी मेंशन्ड है कि किस जगह से कितने आर्टिकल्स सेलेक्ट हुए हैं और अल्टीमेटली टोटल क्या है आपके पास. एंड बेस्ड ऑन दैट देन द आइडेंटिफिकेशन इज कैरिड आउट, स्क्रीनिंग हैज बीन डन. Ultimately, based on some of the quality criteria, some set of articles have been shortlisted for discussion, which are generally यहाँ पे 57 articles हैं out of स्टार्ट किया था तकरीबन 1 लाख आर्टिकल्स, 10 लाख आर्टिकल्स, 1 मिलियन आर्टिकल्स से स्टार्ट किया था जो इनिशियल सर्च में आए, उससे 1295 पे आए हैं. और अल्टीमेटली ये कम करते करते क्वालिटी टॉल गेस बेस जो अप्रोच है उसकी बेस के ऊपर दिस हैज रिड्यूस्ड टू अ नंबर विच इज अराउंड 57 और 50 प्लस आर्टिकल्स. उन्हीं के बारे में बात हुई है कि शॉर्ट लिस्टिंग कैसे की है, इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या था. Now here the again numbers have been drawn for better clarification. और फिर उनकी रीजंस दी गई हैं कि किन रीजंस पे ये एक्सक्लूजन्स की गई हैं. पीरियड को कंसिडर किया गया है, इम्पैक्ट को देखा गया है, सोर्सेज को देखा गया है, लैंग्वेज को देखा गया है, एक्सेसिबिलिटी के पर्सपेक्टिव से सर्च किया गया, रेलेवेंस. सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड. और अगर मैं इसको आगे स्क्रॉल करता जाऊं, क्रेडिबिलिटी रेलेवेंस के बारे में बात हुई है जो कि टॉल गेट अप्रोच है. और टॉल गेट अप्रोच की बेसिस के ऊपर क्वालिटी असेसमेंट एनालिसिस की गई है और अल्टीमेटली यहाँ पे उसका एक बनाया गया है कि किस चीज़ को कितने नंबर देके अल्टीमेटली. नाउ दिस इज इनफैक्ट द क्वालिटी असेसमेंट मैट्रिक्स जिसमें वो सारे 57 आर्टिकल फिर क्वालिटी वाइज प्लेस किए गए कि किसकी कितनी क्वांटिटी बनती है, क्वांटिफिकेशन में नंबर क्या बनता है, कितना अच्छा ये पेपर है फ्रॉम वेरियस थिंग्स. इसमें देखें क्लैरिटी की बात हो रही है, अप्रोप्रिएटनेस, थॉरोनेस, एडिक्वेसी, reporting, robustness, validity, sample size, rigor, relevance, ethical handling, credibility, relevance. So accordingly कुछ टॉपिक्स को सबमिट कंबाइन करके उनको फिर एक नंबर दिया गया. सो robustness, validity, sample size इंक्लूड करके rigor का एक कॉलम बनाया गया जिसको 30%, अकॉर्डिंगली 40, 30, 20, 10 के बेस पे ये सारे आर्टिकल्स जो है उनकी क्वालिटी को फिगर आउट किया गया है और उनको नंबरिंग करके इफ यू सी द टोटल अराउंड 52 आर्टिकल्स जो कि यहाँ पे डिस्कस हुए हैं उनके रेफरेंस के साथ ये नंबर दिए हुए. आप इन आर्टिकल्स को आगे जाके डिटेल में डिस्कस किए. इसी के मुख्तलिफ ग्राफ्स बनाए गए हैं कि क्वालिटी असेसमेंट किस बुनियाद पे की गई है. और जब इसमें आगे लेके चले तो इन शॉर्ट लिस्ट आर्टिकल्स के बारे में लेटर ऑन वुड बी डिस्कशन. नाउ यू सी हियर दी क्वालिटी सिंथेसिस मैट्रिक्स या जिनको हम सिंथेसिस मैट्रिक्स प्योरली कहते हैं वो आने शुरू हो गए. You see article numbers have been mentioned and the objectives which they are addressing, those are discussed along with their models, data sets and evaluation parameters. If we move further downward, so results and discussions of the same articles will be discussed then. Now it depends upon the writer how good he or she writes.
नाउ रिसर्च क्वेश्चन 1 देखिए पिक किया है, और इन सारे आर्टिकल्स को, जो कि 52 आर्टिकल्स थे, उनमें क्या बातें हुई हुई हैं उनको टेबल्स और फिगर्स की फॉर्म में सॉलिसिट कर दिया। रिसर्च क्वेश्चन 1 एड्रेस हुआ है, उसका सिंथेसिस मैट्रिक्स बनाया गया है। रिसर्च क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं। रिसर्च क्वेश्चन 2 के पर्सपेक्टिव से बातें की गई हैं। अगर उसमें कोई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन डालनी है, कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, मेंशन किया है, और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर जो रिसर्च पेपर शॉर्टलिस्ट हुए थे उनके बारे में डिस्कशंस हुई हैं। वो इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से था, अगर आपको याद हो तो वो बातें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। और फर्दर रिसर्च क्वेश्चन 3 पिक हुआ है, इसकी findings and challenges have been discussed. RQ4 has been discussed, and their related synthesis matrices are given. Ultimately, comparisons on related parameters have been given. Findings have been discussed. Benchmarks have been discussed. And then the final conclusion is given. And if you see the reference list, this goes around 121. So generally speaking, ये I would say जो एक rule of thumb है, 100 plus articles are considered once you write an SLR. And the pattern is this: once you start writing, comments would be received, and it is a long process which takes time to get it to some stage where you are seeing it being accepted at some good platform. ठीक है जी? So I hope SLR और रेगुलर लिटरेचर रिव्यू में जो फर्क है वो आपको पता चल गया सबको। ठीक है जी? जो ऑनलाइन है, आप लोग की आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर। सर एक क्वेश्चन था। एनी क्वेश्चन है जी? बिल्कुल पूछें जी, कामरान खान। सर क्वेश्चन ये था, ये जो हमने 1 मिलियन से हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं 157, ये किसी टूल के थ्रू किए हैं या कैसे किए हैं? ये और वो जो टूल के थ्रू नंबर कर टेबल में सकते हैं, ऑटोमेटेड टूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, और आप खुद भी एक्सक्लूजन्स अप्लाई कर सकते हैं, जिनको आप मैनुअल एक्सक्लूजन्स कहते हैं। कि इनिशियली बिल्कुल माइनर डिस्कशंस बेस्ड, के आप सिंपल ये कहें जी कि ये पेपर जो है फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस डोमेन का नहीं है, बल्कि ये सोशल साइंसेज के डोमेन से लिखा गया, ऑलमोस्ट कीवर्ड्स में आ गया था, तो एक्सक्लूड कर दिया आप। सर जो टेबल में पैरामीटर्स थे क्लैरिटी वाले, और वो सारे फिर हमने किस टूल के थ्रू निकाले हैं? मैंने आपको यही कहा ना कि हर जगह टूल अप्लाई नहीं हुआ। देयर इज नो स्पेसिफिक टूल विच आई हैव बीन एबल टू फाइंड। दैट टूल कुड बी अ एक्सेल टूल, कि एक्सेल के ऊपर आप अपनी इस तरह की कोई फिल्टर अप्लाई कर दें और कुछ आर्टिकल्स को वहां से शॉर्टलिस्ट कर लें, बट देयर इज नो स्पेसिफिक टूल एज सच। ओके सर। बट आजकल चूंकि आपकी ये एआई बेस्ड कुछ टूल्स अवेलेबल है, मे बी यू एबल टू यूज इट। अगर आप यूज करते हैं तो आप उसको मेंशन करें। राइट सर। जी, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीबडी एल्स? सर उसके लिए यही जैसे आपने पहले ही कहा था कि इट इज़ बेटर कि आप जिस पे भी थीसिस करें तो उसी पे ही अभी से ही कोई डिस्कशन फाइनल हो जाए तो वो ज़्यादा फिर बेहतर हो जाएगा, क्योंकि फिर वो आगे काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगा, क्योंकि काफ़ी अराउंड 50% to 60% काम हो जाएगा थीसिस के हवाले से भी, इफ़ वी आर गोइंग टू डू दिस वे। ठीक, जस्ट यूर राइट। ओके जी। सो एसएलआर के परस्पेक्टिव से जो डिस्कशन हमने की है अभी, आपने टारगेट करना है, योर एसएलआर शुड बी ऑफ सिमिलर नेचर। आई वुड कंटिन्यू सपोर्टिंग योर वर्क। देयर वुड बी मे बी फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, जो कि हम इस सब्जेक्ट के दौरान आपका एवेल्युएट कर लेंगे। बट इफ यू रिमेन इंटरेस्टेड, आई विल ट्राई टू गेट इट पब्लिश टू सम सुटेबल सोर्स, बट इम्प्रूवमेंट्स वुड बी नीडेड फ्रॉम योर साइड, जो जो साथ साथ आपको सजेस्ट की जाए। But for the requirement of the course, we need to start working on this, and accordingly अपने आप articles को selection शुरू करें, and then you should able to write something. इसमें ये है कि अभी जो आपकी मैंने initial tasking की थी, शायद लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था कि आप अपने जो proposal document है उसके 2 sections आपने लिखने हैं, जिसमें एक introduction का section है और एक आपका
लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन है, जिसके अंदर 15 से 20 आर्टिकल्स आप डिस्कस कर सकते हैं और उसको सुटेबली आप इंक्लूड करके वो आप मुझसे मे बी बाय नेक्स्ट वीक मुझसे शेयर करें, ताकि आई शुड बी एबल टू गिव यू सम प्लेजरिज्म रिपोर्ट ऑन दैट कि इसमें आपका क्या, आपने काम कैसे किया और उसकी इंप्रूवमेंट्स कुछ आपको मैं सजेस्ट कर सकूं। बट स्टार्ट वर्किंग ऑन SLR एज वेल बेस्ड ऑन दीज थिंग्स। फॉर दैट आई वुड सजेस्ट कि ये जो पेपर इसमें मैं आपको रेफर कर रहा हूँ इसको पढ़ें and try to figure out, try to map your intelligence on considering your area into some related SLRs. कि how would you open up your things? And I would again highlight here कि do not say या consider कि जी आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं शायद बहुत ही नया है, उसमें कुछ नहीं हुआ हुआ। उस तरह के रिलेटेड डोमेन्स में बहुत सारे काम हुए हैं। तो हो सकता है आप जिस शाख पे बैठे हुए आप चर्पिंग कर रहे हैं वो शाख नई निकली है, बट ये कि बहुत सारी उस दरख्त की और शाखें थी उससे पहले एग्जिस्ट करती थी जो कि SLR का हिस्सा बनेंगी। तो वो शाखें ढूंढना आपका थोड़ा सा उसमें एफर्ट है कि वो कैसे आप उन ब्रांचेस को फिगर आउट करेंगे और उनकी लीव्स को आप शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि ये मेरे वो डोमेन्स या वो रिलेटेड एरियाज हैं जो कि इससे ताल्लुक रखते हैं। लाइक लास्ट क्लास में बात कर रहे थे कामरान वर्चुअल स्टेनिंग की, तो वर्चुअल स्टेनिंग ठीक है, स्टेनिंग डोमेन में वर्चुअल स्टेनिंग शायद अभी शुरू हुई है, लेकिन वर्चुअलिटी जो है वो बहुत अरसे से एग्जिस्ट कर रही है बहुत सारे और डोमेन्स के अंदर। So SLR should be on virtual domain or virtual working of the manual systems, not only virtual staining. That is one branch, बल्कि एक branch का एक लीव है वो सिर्फ, तो उस पर तो कोई SLR लिखा नहीं जा सकता है सच, बट वर्चुअलाइजेशन के ऊपर SLR लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप स्कोप कम करते हैं, आप अपने आप को खुद ही लिमिट कर लेते हैं कि जी मैंने यही काम करना है, तो उस पर तो शायद 3 4 5 10 पेपर्स ही मिलेंगे, वो फिर आपका लिटरेचर रिव्यू लिखा जाएगा सिर्फ। बट SLR के लिए यू नीड टू बी मोर ब्रॉडर, आपने बड़ा सोचना है, टारगेट बड़ा रखना है। ठीक है जी हमजा, गर्मी तो नहीं है, गर्मी तो नहीं लग रही आपको, गर्मी तो नहीं लग रही? आपका नाम, सॉरी मैं हमजा गलत तो नहीं ले रहा कहीं? उमर है आप, सॉरी सॉरी सॉरी, उमर है जो, ठीक है। सो उमर, आप गर्मी तो नहीं लग रही? ऑल वेल, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन आपका? एक क्वेश्चन है, जो लिटरेचर में है तो वो रिसर्च पेपर के लिए लिखा है, जो SLR है वो अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है। SLR खुद एक 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 रिसर्च पेपर है। SLR एक खुद रिसर्च पेपर है। एक रिसर्च पेपर, रेगुलर रिसर्च पेपर के अंदर एक लिटरेचर रिव्यू सेक्शन भी होता है, जो कि पहली लेटर होती है, उसमें ये सारी चीजें डिस्कस नहीं की जाती। जो रिव्यू पेपर है, नहीं, रिव्यू पेपर इज एन SLR, असूलन स्पीकिंग SLR रिव्यू पेपर इज एन SLR, सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू पेपर है वो, उसको SLR का तरीका ये होता है, ये आइडियल है। हाँ, आपको ऐसे SLRs मिलेंगे जो शायद ऐसे ही लिख दिए होंगे लोगों ने, या कोई बहुत अच्छे तरीके से नहीं मेंशन किए होंगे, और वो उसी तरह की एक्सपेंशन होगी जो एक लिटरेचर रिव्यू सेक्शन होता है। बट दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ राइटिंग अ लिटरेचर अ रिव्यू पेपर। A review paper is always a systematic review paper, which should follow this approach. So I am giving you the right approach. This is the right thing or the practical thing. Again I am repeating, हो सकता है आपको ऐसे कुछ रिव्यू पेपर्स मिले जो जनरल परसेप्शन हमारी होती है कि बस कुछ पेपर पढ़े और उनके बारे में मेंशन कर दिया, वो SLR नहीं होता, या वो रिव्यू पेपर भी नहीं होता, वो बस कुछ होता है। और ऐसे बहुत सारे फोरम्स हैं जहां पे चीजें एक्सेप्ट हो जाती हैं। There are many places where you would see such papers. हो सकता है किसी अच्छे जर्नल में भी पब्लिश हो जाए, लेकिन कम होंगे, बट उसकी वजह कुछ और होगी, किसी स्पेशल इशू में आया होगा। I would not mention many other things, but there are, but review paper should be an SLR, and SLR follows the principle of prisma obbligationum, nothing else. ठीक है जी, सब आपने आइडिया को ठीक रखें और अकॉर्डिंगली फोकस करें SLR को। इट रिक्वायर्स एफर्ट्स बट इट विल हेल्प यू थ्रू आउट। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको जहन में होनी चाहिए कि जो अभी आप टॉपिक डिसाइड कर लेंगे आज मास्टर्स लेवल में, अगर कहीं आपका इरादा है आगे PhD करने का, पोस्ट PhD में जाने का, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप इस टॉपिक से बहुत ज्यादा हट नहीं पाएंगे, ये आपके जड़ में बैठ जाएगा। इसलिए आज जो टॉपिक डिसाइड कर रहे हैं वो ये सोच समझ के डिसाइड करें कि यही टॉपिक या इसके आसपास ही थोड़ी वेरिएशंस के साथ आपने आप सारी उम्र चलना है। बहुत ही मुश्किल है कि आप टॉपिक बाद में चेंज करें, बड़ा रेयर होगा जब तक कोई और आपसे जबरदस्ती चेंज ना कराए, आपको ऐसी स्कॉलरशिप मिल जाए जहां पे कुछ लोग बैठे होंगे नहीं जी ये नहीं, लेकिन आप अप्लाई ऐसी जगहों पे करोगे जो आपको आता होगा, बाकी तो आप अप्लाई भी नहीं कर पाओगे।
इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा आप सबसे कि अभी से अपने टॉपिक को उस डायरेक्शन में लेके चलें जो टॉपिक वाकई अगले 10-15 साल का है, जिसमें आपको समझ आती है कि इसके अंदर आगे मैंने पीएचडी भी अगर करनी हो तो मैं कर सकता हूँ, पोस्ट पीएचडी करनी है तो भी कर सकता हूँ। मैं आपको अपनी एग्जांपल दूंगा कि मैंने जब 2000 में अपना टॉपिक डिसाइड किया था तो मैंने न्यूरल नेटवर्क्स को डिसाइड किया था। मुझे सबने मना किया यार ये क्या चीज करना चाह रहे हो, तो कुछ इस पे ये तो है ही कुछ नहीं। और वाकई उस टाइम पे देयर वाज नथिंग अबाउट एआई। 2000 में ऐसी कोई बात नहीं थी। 2009 में मैंने जब अपनी पीएचडी की उस वक्त तक इस पे कोई चीज नहीं थी। बट अभी आप देखते हैं तो हर दूसरा बंदा जो है वो एआई के पीछे भाग रहा है आफ्टर 15 years। सो दिस डिसीजन विल मेक यू हॉट केक एट राइट टाइम। सो अभी सिर्फ ये सोच के नहीं टॉपिक डिसाइड कर लें यार ये मुझे एक फेवरेट बंदा करा रहा है तो चलो यार ये अच्छा बंदा है, लेट माई वर्क बी विद हिम और हर। नहीं, सुपरवाइजर बेस्ड डिसीजन नहीं करें, टॉपिक बेस्ड डिसीजन करें। हो सकता है आपको अच्छा सुपरवाइजर अभी ना मिले, लेकिन अगेन आई रिपीट कि दिस वर्क हैज टू बी डन बाय यू, नॉट बाय अ सुपरवाइजर। नो सुपरवाइजर विल असिस्ट यू। उसका काम ही नहीं है। उसका काम सिर्फ इतना है कि उसने आपको मेंटली सपोर्ट करना है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली सपोर्ट करना है। सही है, आपके साथ बैठ के वो काम नहीं करेगा, काम नहीं कराएगा। और अगर कहीं वो आपको भी पास करा भी देता है तो बाद में नुकसान होगा आपको अगर उसका टॉपिक ठीक नहीं है या टॉपिक रिलेटेड नहीं है। तो इस पे अच्छा होमवर्क कर लें, अभी स्टिल टाइम है आपके पास। सोच समझ के अपने मौजू को डिसाइड करें और फिर अपना काम लेके चलें। और अगर आपने इस अप्रोच के साथ चलें जो एक रेगुलर अप्रोच है जिसमें सारी चीजें करे कि आप चलेंगे तो आपका ये अगला 10 से 15 साल सेफ हो जाते हैं अगर आपने एकेडमिक्स में रहना है। नहीं रहना तो एक अलग वजह है, वो एक अलग बात है कि कुछ लोग होते हैं सिर्फ एमएस का टिक मार्क करने आते हैं, तो ठीक है वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करें। और लेकिन बाकी लोगों को मेरी एडवाइस यही है। सो आई होप इस पे किसी को कोई डाउट नहीं है और देयर इज नो अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके जी, सो इफ देयर इज नथिंग एल्स सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट थिंग नाउ। मैंने जो आपको टास्किंग की हुई है उसमें जो आपको इम्पोर्टेंट चीज मैंने बताई थी वो ये कि आपने अपनी TH1 फॉर्म को फिल करना है। यू नीड टू डिसाइड योर सुपरवाइजर एंड योर GC मेंबर्स। सो टॉपिक को फाइनल करके वो फॉर्म आपने साइन कराना है और वो भी मुझे नेक्स्ट वीक में सबमिट करना है आपने। एंड आई वुड से कि उसमें ये नहीं होना चाहिए कि बस जो एक एक बंदा है उसी के पीछे सारे लग गए हैं और उसी के एज अ सुपरवाइजर उसका नाम लिख दें। नो, यू शुड नॉट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन पॉपुलैरिटी। use brain and decide about correct topic and go to the right person and then decide about your team, right? एक एक ही सुपरवाइजर के 3 से ज्यादा लोग मैं एक्सेप्ट या 3 से ज्यादा फॉर्म्स में एक्सपेक्ट नहीं करता कि आए मेरे पास, right? If you are सर using the name of Dr. Arslan, then there should not be more than 3 students going to the one supervisor. Go for others. सर ठीक है जी, समझ गए सारे? तो अकॉर्डिंगली जरा इस पे होमवर्क करें और वो फॉर्म भी आपने सबमिट करना है और अकॉर्डिंगली अपनी फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो 2 सेक्शंस हैं वो भी आपने मुझे देना है नेक्स्ट क्लास तक, जो नेक्स्ट हमारी फ्राइडे की क्लास इंशाल्लाह होगी। ओके, नेक्स्ट हमारी सैटरडे ऑन नहीं है, सैटरडे आज वाला ऑन है, फिर एक सैटरडे आगे ऑन होगा, वो हम देखेंगे। अगर हमने कंटेंट रेगुलर कवर कर लिया तो देन आई विल नॉट टेक द सैटरडे क्लास अगेन। ठीक है, सो दिस इज एज फार एज सम ऑफ द प्रीवियस थिंग्स आर कंसर्न और हमने इस पे डिटेल में बात भी कर ली है। अब हम आगे मूव करते हैं और थोड़ा सा अगली चीज़ें कुछ एक आध चीज़ और देखते हैं, तो वट एवर टाइम परमिट्स।
Okay, so as far as overall items are concerned, तो हमने we have completed the reading portion कि हमने क्या कैसे कहाँ से पढ़ना है और क्या चीज़ उसके अंदर से सेलेक्ट करनी है, वो मैंने अब सारा काम कंप्लीट कर लिया। राइटिंग के पर्सपेक्टिव से भी हमने कुछ चीज़ें शुरू कर दी हैं। आपने कुछ चीज़ें अब लिखेंगे और मैंने आपको कुछ आइडियाज़ दिए हैं। इसमें हमने रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स भी देख लिए हैं, हमने उनके टूल्स भी देख लिए हैं, हमने सिलेक्शन क्राइटेरियाज भी देख लिए हैं, हमने एसएलआर भी देख लिया, हमने इंट्रोडक्शन लिटरेचर रिव्यू को भी देख लिया। तो अब आपने राइटिंग भी शुरू कर दी। अब इसमें हम और बातें भी करेंगे विच वुड बी primarily based on the writing perspective. Once you start presenting, then we'll discuss on presentation aspects as well कि presentation के अंदर क्या क्या चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है, किस तरह से करनी है। इस चीज़ को आप जहन में रखें। उसी पर्सपेक्टिव से आज एक चीज़ और जो अभी से जिस तरह से टाइम रह गया है, मैं उसके हाथ से एक फिलर आई वुड से आइडिया डिस्कस करता हूँ, विच इज़ कॉल्ड ओरिजिनलिटी। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है, once you defend your articles, once you defend your research proposal, once you defend your research project, people ask you, the evaluators, and in case of your research papers, your reviewers, okay, what is the originality of your work? इस थीम को या इस आइडिया के ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं, कैसे कैसे हैंडल किया जाए। अच्छा जी, इस वक्त ये सेशन जो है वो क्लोज होने वाला है, तो लेट मी एंड दिस सेशन एंड मैं दोबारा इस सेशन को ज्वाइन कीजिए ताकि अगली चीज़ आप फिर उस पर सुन लें, बजाय हम इसको बीच में डिस्कनेक्ट करें। ये मैं ऑनलाइन जितने लोग हैं उनसे बात कर रहा हूँ। वी आर स्टार्टिंग दिस सेशन अगेन, प्लीज ज्वाइन अगेन।